Good morning, students. I am Samita from JPPS. Student, in previous video, we discussed four theorems. First theorem is in parallelogram, opposite sides are equal. Student, in previous video, we discussed four theorems. First is in parallelogram, opposite sides are equal. Second, in parallelogram, opposite angles are equal. Number 3, in parallelogram, diagonal bisect each other. And theorem number 4, if two sides of a quadrilateral, if opposite sides of a quadrilateral are equal, then quadrilateral be a parallelogram. Now students, today we discuss theorem number 5. Theorem 5 is if in a quadrilateral, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम है. स्टूडेंट वी गिवन ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल. इट मीन्स एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के. एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के. एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के. स्टूडेंट एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है. एंड आपको प्रूफ करना है इट इज ए पैरेललोग्राम. क्या प्रूफ करना है आपको? इट इज ए पैरेललोग्राम. तो फर्स्ट गिवन what is given is ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which angle A equal angle C and angle B equal angle B. Student, what is given? ABCD is a quadrilateral in which angle A equal angle C and angle B equal angle D. Now to prove, क्या प्रूव करना है आपको? To prove is ABCD is a parallelogram. So to prove ABCD is a parallelogram. Now prove. Students, we know that sum of all angles of a quadrilateral is 360. Students, we know that sum of all angles of a quadrilateral is 360. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360. So in quadrilateral ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. It is angle sum property of quadrilateral. Now angle A किसके इक्वल है? एंगल C. एंगल A किसके इक्वल है? एंगल C. तो आपने एंगल C की वैल्यू क्या रिप्लेस की? एंगल A. सेम एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D. तो आपने एंगल D की वैल्यू क्या रिप्लेस की? एंगल B. एंगल A प्लस एंगल A, टू एंगल A. एंगल B प्लस एंगल B, टू एंगल B. तो एंगल टू एंगल A प्लस टू एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री. टू कॉमन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. स्टूडेंट सी हेयर एंगल A प्लस एंगल B, sum of both angle A and angle B is 180 degree. Now these are co-interior angle. स्टूडेंट एंगल कैसे है? दोनों co-interior है. जब एंगल co-interior है सम कितना है? 180 है. इट मीन्स लाइन AD पैरेलल BC. स्टूडेंट सी हेयर sum of angle A and angle B is 180. These are
को इंटीरियर एंगल, एंगल कैसे है, को इंटीरियर एंगल है, पॉइंट एंगल सम कितना है 180 है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, सो दिस लाइन आर पैरेलल, सो स्टूडेंट सो लाइन AD parallel BC, so student line AD parallel BC. Similarly students, similarly means सेम स्टेप से आप क्या प्रूव कर सकते हो, एंगल A प्लस एंगल D, सिमिलरली सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, सम भी क्या है इनका 180 है, when sum of angle A angle D is 180, इनका सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, so these line are parallel, so line AB parallel DC. Student, according to equation 1 AD parallel BC, according to AB parallel DC, so opposite sides are parallel. स्टूडेंट अपोजिट साइड्स कैसी है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इट मींस लाइन आर, इट मींस ABCD पैरेललोग्राम, सो स्टूडेंट ABCD इज ए पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट्स इफ इन ए क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल इक्वल, आपके पास क्वाड्रिलेटर है, अपोजिट्स एंगल कैसे है इक्वल है, देन क्वाड्रिलेटर क्या फॉर्म करेगा आपके पास, क्वाड्रिलेटर आपके पास पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा. स्टूडेंट वी नो थ्योरम नंबर 2, व्हाट इज थ्योरम 2, थ्योरम 2 इज इन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल. स्टूडेंट आपने थ्योरम 2 को डिस्कस किया हुआ है, थ्योरम 2 में क्या आपके पास, इन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, बट इन दिस थ्योरम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, आपको क्या गिवन है, अपोजिट्स एंगल इक्वल गिवन है, एंड आपको प्रूफ क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. सो दिस थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2. स्टूडेंट दिस थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2. ये प्लस क्या है, थ्योरम 2 का कन्वर्स है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल है, अपोजिट है. थ्योरम 2 में आपको पैरेललोग्राम गिवन है एंड अपोजिट एंगल इक्वल शो करना है, बट इन दिस थ्योरम आपको अपोजिट एंगल इक्वल गिवन है, आपको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. नाउ स्टूडेंट थ्योरम नंबर 6, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. स्टूडेंट आपके पास PQRS पैरेललोग्राम गिवन है, आपको क्या गिवन है, PQRS पैरेललोग्राम गिवन है. पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बाइसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स OP एंड OR, OP किसके इक्वल है, OR के इक्वल है. सेम OQ किसके इक्वल है, OS के इक्वल है. OP OR के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है. OP इक्वल OR एंड OS इक्वल OQ. एंड आपको क्या प्रूफ करना है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम. स्टूडेंट आपको डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स OP OR के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है, एंड आपको प्रूफ करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम. तो स्टूडेंट फर्स्ट इज गिवन, व्हाट इज गिवन इन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज गिवन, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए quadrilateral in which OP equal OR and OQ equal OS. PQRS is a quadrilateral. PQRS is a quadrilateral in which OP equal OR and OQ equal OS. Now क्या प्रूफ करना है आपको, to prove what is proof, PQRS is a parallelogram.
Now student, proof. Student, see here we have two triangles. First is POS. Student, अब बस two triangle है. फर्स्ट ट्रायंगल क्या है? POS. सेकंड क्या है? ROQ. स्टूडेंट, आपके पास टू ट्रायंगल है. फर्स्ट ट्रायंगल क्या है? POS. सेकंड है ROQ. सो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल ROQ. स्टूडेंट, OP किसके इक्वल है? OR. OP इक्वल OR आपको गिवन है. सेम एंगल POS किसके इक्वल है? ROQ. एंगल POS इक्वल है एंगल ROQ. वर्टिकली अपोजिट एंगल. कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. नेक्स्ट, OS इक्वल OQ. ये भी क्या आपके पास? A1 है. स्टूडेंट, OP OR के इक्वल है. एंगल POS ROQ के इक्वल है. OS OQ के इक्वल है. सो इट मीन्स ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. सो स्टूडेंट, ट्रायंगल POS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ROQ. बोथ ट्रायंगल कैसे स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट है. When triangles are congruent, then corresponding part are equal. Triangles कैसे है? Congruent है, तो क्या होगा? उनके corresponding part equal होंगे. OP के अपोजिट एंगल क्या है? OP के अपोजिट एंगल है PSO. OP के अपोजिट क्या है? PSO. सेम OR के अपोजिट क्या है? RQO. तो स्टूडेंट, PSO इक्वल एंगल RQO. एंगल PSO किसके इक्वल है? RQO. PSO इक्वल RQO बाई CPCT. स्टूडेंट, PSO किसके इक्वल है? RQO. बोथ एंगल इक्वल है. बोथ एंगल कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. बोथ एंगल इक्वल है और बोथ एंगल कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. इट मीन्स these line are parallel. So line PS parallel QR. Same student. SPO angle SPO equal QRO. Angle SPO equal QRO. बोथ एंगल कैसे है? इक्वल है. बोथ एंगल इक्वल है. बोथ एंगल कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. बोथ एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. सो PS पैरेलल QR. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टेक ट्रायंगल POQ, अगर आपने POQ ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है एंड ROS ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है, सेम OP किसके इक्वल है? OR के इक्वल है. एंगल POQ किसके इक्वल है? ROS के इक्वल है. वर्टिकल अपोजिट एंगल है. सेम OS किसके इक्वल है? OQ के इक्वल है. तो आपको प्रूव कर सकते हो. देन यू ऑल्सो प्रूव ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ROS. ट्रायंगल कैसे? ये कॉन्ग्रुएंट है. सेम आपके पास क्या हो जाएगा वहाँ पे? PQ पैरेलल RS. सो स्टूडेंट, सिमिलरली मीन्स एज इट आपने जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, सेम आप सेकंड पार्ट प्रूव करते हो. सिमिलरली PQ पैरेलल RS. स्टूडेंट, PS किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है. PQ किसके पैरेलल है? RS के पैरेलल है. PS QR के पैरेलल है. PQ RS के पैरेलल है. सो PQ RS इज ए पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट, PQ RS इज ए पैरेललोग्राम. स्टूडेंट, we discussed theorem number 3. Theorem 3 is in parallelogram diagonal bisect each other. स्टूडेंट, आपने theorem 3 डिस्कस किया हुआ है. theorem 3 में क्या है? in parallelogram diagonal bisect each other. But theorem 6, in theorem 6, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram.
क्या गिवन है, आपको क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बट थ्योरम 3 में आपको पैरेललोग्राम गिवन था, थ्योरम 3 में क्या था, आपको पैरेललोग्राम गिवन था, एंड आपको क्या प्रूव करना था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस थ्योरम 6 इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3। So theorem 6 is converse of theorem 3. So student, today we complete theorems of parallelogram. 6 theorems of parallelogram are: first is in parallelogram diagonals, in parallelogram opposite angle are equal, in parallelogram opposite sides are equal, in parallelogram diagonal bisect each other. Next theorem, if opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Next is, if opposite angle of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Next is, if diagonals of a quadrilateral bisect each other. If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Friends, we discussed type of quadrilateral. We already discussed parallelogram. First type of quadrilateral is parallelogram. Now, today we discuss second type of quadrilateral, rectangle. We discussed first type of quadrilateral, which is parallelogram. Now we discuss second type of quadrilateral, which is rectangle. So आपने फर्स्ट वीडियो में आपने क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट टाइप पैरेलल डिस्कस किया हुआ है। नाउ सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, क्या है, रेक्टेंगल। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जैसे आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ईच एंगल कैसा है, आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, तो आपके पास जो पैरेललोग्राम है वो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। If each angle of a parallelogram is 90 degree or right angle, then parallelogram is a rectangle. Students, see here, ABC is a rectangle in which angle is 90, B 90, C, each angle is 90 degree. So ABC is a rectangle. Student, ABCD क्या आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी। सो AD किसके इक्वल है, BC के, AB किसके इक्वल है, CD के। तो स्टूडेंट, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होगी, आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, एंड ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स AB इक्वल CD, AD इक्वल BC। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, एंड एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज in rectangle diagonals are equal. Property of rectangle is, in rectangle diagonals are equal. diagonals कैसे हो गया, आपके पास इक्वल हो गया। इट मीन्स AC, ये जो AC है किसके इक्वल होगा, ये BD के इक्वल होगा। इट मीन्स AC इक्वल BD। तो स्टूडेंट, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज rhombus. What is rhombus? A parallelogram in which all sides are equal. A parallelogram in which all sides are equal is called a rhombus.
What is rhombus? A parallelogram in which all sides are equal. पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या है, ऑल साइड्स कैसी है, इक्वल है, इट इज कॉल्ड rhombus. Students see here, PQRS is rhombus. आपके पास PQRS क्या है, rhombus फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स PQ किसके इक्वल है, QR किसके इक्वल है, RS इक्वल PS. ऑल साइड्स कैसी है, इक्वल है. सो स्टूडेंट इन rhombus ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स PQ किसके इक्वल है, QR किसके इक्वल है, RS इक्वल PS. सो स्टूडेंट इन rhombus ऑल साइड्स आर इक्वल. स्टूडेंट सी हियर, rhombus इज ए पैरेललोग्राम. व्हाट इज rhombus? ए पैरेललोग्राम. rhombus क्या पैरेललोग्राम है, इट मीन्स इन rhombus अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल. What is rhombus? Rhombus is a parallelogram. So student, in rhombus, opposite sides are equal. Opposite sides are parallel. So PQ parallel RS and PS parallel QR. PQ किसके parallel है? RS के parallel है. PS किसके parallel है? QR के parallel है. Opposite sides क्या है? Parallel है. And sides कैसी है? Equal है. So student, PQ equal QR equal RS equal PS. सो स्टूडेंट rhombus में क्या हो रहा है आपके पास, rhombus में अपोजिट साइड्स कैसी है, पैरेलल है, एंड ऑल साइड्स कैसी है, इक्वल है. PQ किसके इक्वल है, QR किसके इक्वल है, RS इक्वल PS. क्लियर. नाउ स्टूडेंट इन rhombus, प्रॉपर्टी ऑफ rhombus, इन rhombus diagonals are perpendicular bisector each other. So property of rhombus is, in rhombus diagonals are perpendicular bisector of each other. जो आपके पास diagonals होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और perpendicular होते हैं. इट मीन्स diagonals are perpendicular bisector each other. Now student, square. A rhombus in which each angle is 90 degree is called square. What is square? A rhombus in which each angle is 90 degree is called square. ABCD is a square. Student, ABCD क्या बस स्क्वायर है, स्क्वायर है, इट मीन्स आपके पास ऑल साइड्स कैसी है, इक्वल है. ऑल साइड्स कैसी है, इक्वल है, एंड ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री है. ईच एंगल क्या आपके पास 90 डिग्री है. ऑल साइड्स इक्वल है, ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है. सो आपके पास क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल. व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर? इन स्क्वायर diagonals are equal, so it is a square. Now student, today we discuss two theorems and types of quadrilateral. First is rectangle. In rectangle diagonals are equal. Second, rhombus. In rhombus diagonals are perpendicular bisector each other. And third is square. In square diagonals are equal.